شاہراہ قائدین میں پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان درمیان سخت کشیدگی۔ پولیس کی جانب سے نمائش کی جانب پیش قدمی کو روکنے کے لیے آنسو گیس کے شیل فائر کیے جا رہے ہیں، جبکہ کارکنان کی جانب سے شدید پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لانگ مارچ کے سلسلے میں تحریک انصاف کا نمائش چرنگی پر احتجاجی مظاہرہ، صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں شدید جھڑپیں، نمائش چرنگی پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے پتھراؤ کر کے ایس پی گلشن عبدالخالق اور ایس ایچ او خالد رفیق کو زخمی کر دیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس کی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔ مظاہرین نے قیدیوں کی وین بھی جلا دی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے رمشا کنول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رمشا، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور دکھ اس بات کا ہے کہ اس ملک میں عوام کو احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ دفعہ 144 تو نافذ کی گئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے، آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، یہاں پر ہوائی فائرنگ کی گئی، میڈیا ورکرز کی وینز کو نشانہ بنایا گیا، پتھراؤ کیا گیا، ہمارے اوپر، ہمارے ساتھی رپورٹرز کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، یہاں پر پولیس کی گاڑی جلائی گئی۔ یہاں جو ہے نمائش چرنگی کوئی احتجاج کے لیے جگہ اس وقت منظر پیش نہیں کر رہی ہے، یہ کسی میدان جنگ سے کم نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کھڑے ہونا بھی محال ہے، یہاں پر سانس لینا بھی محال ہے، کیونکہ اتنے زیادہ آنسو گیس کے شیلز فائر کیے جا چکے ہیں، اتنی زیادہ فائرنگ ہو چکی ہے، 4 افراد زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں۔ میری ایک ساتھی نمائندہ جو کہ زمزم، ان کو اتنا زیادہ مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، وہ اس وقت وین میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر باہر کارکنان جمع ہیں، انہیں باہر آنے کے لیے جگہ نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جہاں پر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہاں لگتا یہ ہے کہ حقیقی آزادی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال سچویشن یہاں پر یہ ہے کہ بڑی تعداد میں جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلے، دن سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اب شام کے قریباً 7:15 بج رہے ہیں اور یہاں پر عوام بڑی تعداد میں موجود ہے۔ علی زیدی صاحب آئے تھے لیکن ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ ابھی یہاں سے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ دیر بعد دوبارہ آؤں گا، لیکن یہاں پر جو عوام ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں اور جب تک ہمیں نیکسٹ ایکشن پلان نہیں دیا جاتا، چاہے جو بھی حالات ہوں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی کئی دھرنے ہم نے یہاں پر کور کیے ہیں، کیا ایسے ہی حالات رہے؟ ہم سے تھوڑا سا معلومات دے دوں کہ پلان یہاں پر پی ٹی آئی یہ کرنا چاہتی ہے کہ یہاں پہ ایک اسکرین لگانا چاہتی ہے جس میں خان صاحب کا خطاب دکھایا جائے۔ انتظامیہ اس اسکرین لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں پر جو ہے سگنل بند کر دیے گئے ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ احتجاج کریں اور واپس جائیں۔ اب رہی یہاں دھرنوں کی بات، کراچی میں نمائش چرنگی جو ہے وہ کسی زمانے میں دھرنوں کا پوائنٹ ہوا کرتا تھا، لیکن آج آپ سرکار کی پلاننگ دیکھیے کہ ایک طرف گرین لائن بس بھی چل رہی ہے، جو بیٹھ کے بیچارہ نمائش چرنگی آ جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، حالانکہ اس کا احتجاج سے تعلق ہو یا نہ ہو، یہاں سے گزر کے ہی آپ کو تمام سرکاری اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے۔ سول کا راستہ یہاں سے، جنا کا راستہ یہاں پر ہے، اور آج صبح ظلم یہ ہوا کہ جن بچوں کے سینٹرز یہاں تھے آس پاس ان اسکولوں میں، وہ نہیں پہنچ پائے، بورڈ نے کوئی پالیسی نہیں دی کہ جو ان کا سال ضائع ہوگا اس کی کیا پالیسی ہوگی۔ یہاں پر آس پاس تمام مسالک کی مساجد موجود ہیں، شیعہ سنی لے کے ہر چیز کی اچھی خاصی آبادی یہاں پر ہے، اور آبادی کو تقریباً جو ہے وہ ہم کہیں کہ بغیر کسی پلاننگ کے بند کر دیا گیا۔ پھر میں سوال یہی کروں گی اقتدار کے، کیا کوئی متبادل جگہ یا کوئی متبادل مقام طے کیا گیا تھا کہ آئیے اور یہاں پر احتجاج کیجیے، اور اگر پھر وہاں پر اشتعال انگیزی ہوتی تو یقیناً قصوروار ہوتی؟ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور رابطہ کرنے والے جو ہیں وہ شہر چھوڑ گئے تھے۔ حلیم عادل شیخ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بات کرنا چاہیے تھی، وہ کراچی میں موجود نہیں ہے۔ سندھ سرکار یہ اب اس بات کے لیے تیار ہے، پلاننگ ہے کہ اگر باغ جناح میں کوئی احتجاج کرنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں تو وہاں کر سکتے ہیں، لیکن آج جو تھی جس طرح آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ لا کے دیں پلاننگ، اب لا دی گئی، اب خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں ہوئی جناب پلاننگ وہ ساری، تو 3-4 گھنٹے کے جو احتجاج کی اجازت دی جا سکتی تھی۔ ہاں، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ووٹ بینک کے جو 2 پوائنٹس ہیں، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی بنی تو جو 3 تلوار کا مقام تھا وہ 2007 سے سیٹ ان کے پاس ہے، وہاں احتجاج ہوتا۔ 5 اسٹار چورنگی ناظم آباد میں یہ سیٹ اکثر و بیشتر ان کے پاس بہت قریب پی ٹی آئی ہاری اور اس دفعہ جیت بھی گئی تھی، وہاں احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ تو
कारकुनान बहुत पहले आए, कारकुनान को देखकर शायद क़यादत ने गलत पकड़ी और शाम को 6 बजे वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। ख़वातीन कारकुनान ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ, ख़वातीन कारकुनान 10-12 थी, बेचारियाँ बार बार पिटती थीं, धक्के खाती थी, लेकिन यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। शायद ये उन्हीं का हौसला है कि यहाँ पर लोग जमा है। बहुत खासी रेजिस्टेंस शो की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने यहाँ पर, और अपने जो है वो लोगों को छुड़वाया भी है, गिरफ्तारियाँ भी दी हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से इक़्तिदार अनवर भी बता रहे थे कि स्क्रीन लगा के खिताब सुनाना मकसद था, वो मकसद पूरा हो पाता है या नहीं, ये तो अब से कुछ देर बाद जब खिताब शुरू होगा तभी बताएगा। बहरहाल हम यहाँ पर आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। जी तूबा। जी ठीक है रिमशा, ये बताइएगा अब से कुछ देर कबल गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी, मर्दों की भी और ख़वातीन की, और उनके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कई गिरफ्तारियां हुई, और क्योंकि वो काउंटिंग में नहीं है, तकरीबन 200 के करीब जो है वो जो लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, उनको गिरफ्तार किया। मेरी आंखों के सामने कई ख़वातीन हैं जिनमें ख़वातीन को भी गिरफ्तार किया गया। और तुफ तो ये है कि जब ख़वातीन वैन्स में गिरफ्तार हुई तो जब उन्हें धक्के दिए गए, वो अपने बच्चों को छुड़वाना चाहती थी, तो वो सड़कों पर गाड़ियों से नीचे गिरी हैं, जिसकी फुटेज मेरे साथ मौजूद है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे है। यहाँ पर ख़वातीन रिपोर्टर्स का पिटना, ये मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे है कि एहतजाज अपनी जगह, लेकिन एहतजाज अगर पुरअमन हो तो बेहतरीन है। जब ये खूनी रंग इख्तियार कर जाते हैं तो तकलीफ दे हो जाते हैं। कई गिरफ्तारियां हुई, कई लोग यहाँ पर जख्मी होकर अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं, कई लोग यहाँ पर आंसू गैस और शेलिंग से जो है वो परेशान है, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, यहाँ पर बैठना मुश्किल है। लेकिन देन अगेन ज़ीशान नवाब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो है वो ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये दोपहर से भरी धूप से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। कहना सिर्फ इनका यही है कि चाहे जितनी भी देर गुजर जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई हैं और अपने बड़ों के साथ यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। जी तूबा। सांस लेना भी मुश्किल है। रिमशा हमें इस कशीदा सूरत हाल में अपडेट कर रही थी लम्हा बलम्हा, आपका बहुत शुक्रिया। शहराई कायदीन में पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने दरमियान सख्त कशीदगी। पुलिस की जानिब से नुमाइश की जानिब पेशकदमी को रोकने के लिए आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं, जबकि कारकुनान की जानिब से शदीद पथराव किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान इस वक्त इस एहतजाज में मौजूद हैं। जी कामरान, आगाह कीजिएगा वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शायरा कायदीन के मकाम पे मौजूद है। इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो एहतजाज है वो इस वक्त भी जारी है और नुमाइश की जानिब पेशकदमी की जा रही थी, लेकिन पुलिस की जानिब से सख्त जो आंसू गैस की जो शेलिंग है वो यहाँ पे की जा रही है। इस वक्त यहाँ पे बड़े कारकुनान जो है वो बड़े सख्त हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। कैमरामैन फैसल से मैं कहूँगा आपको ये मनाजिर दिखाए। कारकुनान जो है वो शायरा कायदीन से जो अंडरपास है उससे होते हुए नुमाइश की जानिब बढ़े थे। पुलिस की जानिब से बड़े सख्त यहाँ पे जो आंसू गैस है वो शेलिंग की जा रही है। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद हो गए यहाँ पे जो इलाका है ये मैदान जंग बना हुआ है। कैमरामैन फैसल से मैं कहूँगा यहाँ पे जो आंसू गैस की जो शेलिंग है वो शदीद हो रही है। थोड़ा सा आगे की जानिब आए तो यहाँ पे जो कारकुनान है उनकी जानिब से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आँखों में जो रुमाल है वो रखा जा रहा है और मुतबादिल जो दिगर जो एहतियाती तदाबीर है कारकुनान की जानिब से वो अपनाए जा रहे हैं। हाथों में पाकिस्तान का परचम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे हैं वो लिए खड़े हैं कारकुनान। बड़े यहाँ पे एक दूसरे की मदद की जा रही है, पानी एक दूसरे को दिया जा रहा है, आंखों में पानी डाला जा रहा है। कारकुनान जो है इस वक्त हमारे इतराब में मौजूद है। कैमरामैन रमीज़ अगर आपको दिखा तो यहाँ पे जो इलाकाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी भी जानिब से जो मुजाहिरीन हैं उनकी मदद की जा रही है और पानी का यहाँ पे एक बहाव किया जा रहा है ताकि जो कारकुनान है वो आंसू गैस की जो शेलिंग है उससे महफूज रह सकें, उसका मुकाबला कर सकें। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से सख्त यहाँ पे आंसू गैस की जो शेलिंग की जा रही है, तो कारकुनान की जानिब से आगे की जो पेशकदमी है वो यहाँ पे इस वक्त हमें रुकती हुई नज़र आ रही है। नूरानी जो कबाब हाउस है वहाँ से ये होता हुआ ये सिलसिला शुरू हुआ था। कैमरामैन फैसल से मैं कहूँगा कारकुनान जो है वो मुसलसल जो आगे की जानिब की हिम्मत अमलिया पर आ रहे। तो यहाँ पे इस वक्त कारकुनान हाथों में परचम उठाए हुए जो खुदादाद कॉलोनी शायरा कायदीन का जो रोड है यहाँ पे मौजूद है, ख़वातीन कारकुनान मौजूद है और मुसलसल पुलिस के साथ जो आंसू गैस की जो शेलिंग है उसका यहाँ पे मुकाबला करके यहाँ पे खड़े हुए हैं कारकुनान और मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की ये ताज़ा सूरत हाल है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आला क़यादत जब तक उनको कोई हुक्म जारी नहीं करती तब तक वो यहाँ पे खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और सूरत हाल का जो एहतजाज है उस हवाले से जी ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र ग्रीन लाइन ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। ग्रीन लाइन ऑपरेशन पटेल पाड़ा स्टेशन तक महदूद कर दिया गया है। शहरी सरजानी टाउन से पटेल पाड़ा तक बस सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगे। शहर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र ग्रीन लाइन ऑपरेशन भी मुतासर हुआ है। ग्रीन लाइन ऑपरेशन पटेल पाड़ा स्टेशन तक महदूद कर दिया गया है। शहरी सरजानी टाउन से पटेल पाड़ा तक बस सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने गुंडे पुलिस वर्दी में छोड़े हुए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में इमरान इस्माइल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने गुंडे पुलिस वर्दी में छोड़े हुए हैं, जबकि सिंध पीपल्स पार्टी ने पुलिस वर्दी पहनाकर जुराइम पेशा अफराद छोड़े हुए हैं। पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद बनाकर हुकूमत इंतशार फैलाना चाहती है। गैरत का मुजाहरा करें, रुकावटें हटाएं और अवामी समुंदर का मुकाबला करें। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई आज़ादी मार्च और रहनुमाओं के घरों पर छापों से मुतालिक दरख्वास्तों पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला चीफ सेक्रेटरी को 2 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ू की सरबराही में बेंच के रूबरू पीटीआई आज़ादी मार्च और रहनुमाओं के घरों पर छापों से मुतालिक 2 दरख्वास्तों की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि हमारी इस्तदा है कि गिरफ्तारी छापों से रोका जाए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि नोटिस कर दिए हैं। वकला ने मौक़िफ़ दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस नौयत के केसेस में समाअत के अलग प्रोसीजर तय किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये सिंध हाई कोर्ट में वकील साहब हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मत बताएं। वकला ने मौक़िफ़ दिया कि हमारे MNAs MPS को पकड़ा जा रहा है, हमारे 2 मेंबरान लापता हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि ये आपने लापता अफराद की दरख्वास्त लगा दी। तहरीक इंसाफ रहनुमा जेल के डर से लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे। मंजूर वसान ने सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, पीटीआई रहनुमा जेल के डर से लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे, घर में होंगे लेकिन पकड़ धकड़ की वीडियो बनाकर वायरल करते रहेंगे। ये मुझे पता नहीं है, पीटीआई वाले को जेल से इतना परेशान है, गर्मी का सख्त है, अभी गर्मी आने वाली है तो वो भाग रहे हैं इधर उधर, कुछ तो जाएंगे ही नहीं, ऐसे ही जेल के डर से घर में होंगे या टीवी में वीडियो दिखाएंगे कि हमें पकड़ने के लिए कोशिश की गई, हम भाग गए, ज़्यादातर यही है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। अपने बयान में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क माशी, सियासी और आइनी बहरानों में फंसा हुआ है। जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो पीटीआई को लॉन्ग मार्च की सूझी। पीटीआई सड़कों पर सियासत करके इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दूध की कीमतों पर डेयरी फार्मर्स की तंजीमें 2 धड़ों में तकसीम हो गई। डेयरी फार्मर्स की एक तंजीम ने दूध की कीमतों में फ़ी लीटर 10 रुपये इजाफा कर दिया, जबकि हाजी अख्तर ग्रुप ने कीमतों में इजाफे से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर दूध की कीमतों का बोझ बढ़ाया जाए या नहीं, डेयरी फार्मर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में फी लीटर 10 रुपए इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर में कहीं दूध 160 रुपए और कहीं 150 रुपए फी लीटर तक दस्तयाब है। डेयरी फार्मर्स के अंधेर नगरी चौपर राज पर शहरी भी फट पड़े। हुकूमत से दूध सरकारी कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा कर दिया। दूध तो लेना तो अब है, कुछ भी है, अब ये तो काम हुकूमत का है ना कि इसको कंट्रोल करे। हर आदमी यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज लगा हुआ है, जिसका दिल करे जिस तरह बेचे। 160 रुपया जो दूध है ये जुल्म है, गरीब लोग कहाँ जाए, क्या करें। शहर कैद में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए फी लीटर है, मगर सरकारी कीमतों पर दूध कहीं भी फरोख्त नहीं हो रहा। कैमरामैन शाहजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर में सरकारी सतह पर सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहर में सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला अरूज पर जा पहुंचा है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक तलब रसद कदरे बेहतर होने के बावजूद टिंडे 200 रुपये जबकि बंद गोभी 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। दूसरी जानिब टमाटर 120 और लीमू 600 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। प्याज भी 70 रुपये से नीचे नहीं आ सकी, जबकि लौकी, तुरई और पालक समेत दीगर सब्जियां पुरानी कीमतों पर ही फरोख्त की जा रही हैं। शहर कैद के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की किल्लत मामूल बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर कहीं आटा है तो कहीं चीनी गायब। शहरियों की परेशानी कम नहीं हो सकी। कराची में यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया की अदम फराहमी का मसला हल ना हो सका। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के बावजूद शहरियों को सस्ती अशिया जरूरिया न मिल सकी। यूटिलिटी स्टोर इंतजामी की गफलत के सबब शहर के बेशतर स्टोर्स पर बुनियादी अशिया बिलखुसूस चीनी, आटा, घी, तेल की किल्लत है, जिसने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। शहरी कहते हैं दूर दराज से आते हैं लेकिन आटा, घी, चीनी नहीं मिलता। ना चीनी नजर आ रही है ना और कोई ब्रांड नजर आ रहा है कि इनका लोन। ते बता रहे ना, बोल दिए ला ना 2 बजे आते घी, अभी नहीं है अंदर।
शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन शाहजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बल्दिया टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सईदाबाद के मुख्तलिफ यूसेज में सूरत हाल गंभीर हो गई है। एनकेएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असम्बली कामरान अख्तर ने MD वाटर बोर्ड को ख़त लिख दिया है। ख़त के मुताबिक सईदाबाद के मुख्तलिफ यूसेज में पानी की फराहमी न होने के बराबर है। कुछ इलाकों में 3 से 4 महीने में पानी फराहम किया जाता है। वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान की सरपरस्ती में टैंकर माफिया को नवाजा जा रहा है। मज़कूरा इलाकों से गुजरने वाली 8 इंच कतर की लाइन से टैंकर्स भरे जा रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की मुबैना अगवा के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर की सदा पर मुल्ज़िमान के रिमांड में तौसी कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा के मुकदमे की समाअत हुई। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाह ख्वां और गवाह को पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़िमान ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश करनी है, मोहलत दी जाए। दुआ ज़हरा के वालिद वकला ने कहा कि पुलिस ने मजीद मोहलत तलब की है। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। और उसके अलावा साथ साथ जज साहब ने उनको जो है 31 तारीख तक रिमांड दिया है और ऑनरेबल आर्डर हाई कोर्ट के आर्डर को मद्देनज़र रखते हुए 30 तारीख हाई कोर्ट में है तो 31 तारीख के लिए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को कहा कि फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन करें, उन लोगों तक पहुँचें जहाँ जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो कल्पर्ट्स जो इन लोगों को साथ दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन ये भी दी कि आप बच्ची को भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश करें और ऑनरेबल कोर्ट में भी, हमारी कोर्ट में भी पेश किया जाए। बड़ी तशवीशनाक बात है कि बच्ची को बाजियाब अभी तक नहीं किया जा सका, लेकिन उम्मीद है कि अभी जो आज की फर्दर डेवलपमेंट है उसके बाद इंशाअल्लाह ताला और जैसे एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया गया है तो मैं भरपूर उम्मीद करता हूं कि 30 तारीख को हाई कोर्ट में बच्ची को पेश किया जाएगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए दोनों मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 31 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने अंदर समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना अल-फलाह में अगवा का मुकदमा दर्ज है। कैमरामैन हमजा के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। पसंद की शादी करने वाले नौबियाता जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी कोर्ट पहुंच गया। खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाली पसंद की शादी करने वाले नौबियाता जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी कोर्ट पहुंच गया। गुलाम मुर्तज़ा और कलसूम ने SSP खैरपुर से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। आपने बयान में कहा कि हमने पसंद की शादी की है, हमें धमकियां मिल रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सिंध हुकूमत की हिदायत पर बल्दिया किमाड़ी के डायरेक्टर एजुकेशन अकमल सिद्दीकी ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की बहाली के मिशन का आगाज़ कर दिया है। किमाड़ी के स्कूलों की हालत दुरुस्त करने और मयार तालीम को बेहतर करने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी अकमल सिद्दीकी मुतहर्रक हो गए। अकमल सिद्दीकी का कहना है कि जिला के तीनों जोन्स में स्कूलों की तादाद 89 है, जहां टीचर्स की कमी के साथ दीगर लवाजमात की ज़रूरत है। हमें मजमूई तौर पर जो स्कूलों को आबाद करने के लिए ज़रूरत है वो है लैब की, और सेकेंडरी टीचर्स जो है साइंस टीचर्स जो होते हैं वो चाहिए हमें, कुछ जिनकी बहुत ही शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है। कुछ स्कूल ऐसे हैं हमारे जहाँ पे बिलखसूस कराची के किमाड़ी के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। असातिज़ा का कहना है कि ज़िला के तालिब इल्मों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं। कोर्स की अदम दस्तियाबी के बावजूद ज़िला के 125 तालिब इल्मों ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। हमारे पास तो सहूलियात कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों ने A1 ग्रेड लिया, A ग्रेड लिया। 125 बच्चे हमारे यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के हैं उन्होंने अच्छे खासे ग्रेड में आ गए हैं। गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हर टीचर बच्चे पे मेहनत करती है, और अच्छा सबसे बेसिक मसला ही कि बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। ठीक है, मैं खुद टीचर हूँ, मैं बच्चों को किताबें ला के देती हूँ और बुक स्टॉल पे जाती हूँ तो वो यहाँ की मिलती नहीं है किताबें। वसाइल की कमी अपनी जगह, लेकिन मौसर निगरानी के अमल से उम्मीद है कि बल्दिया किमाड़ी के सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार बेहतर होता रहेगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर बल्दिया कोरंगी के महकमा बागात ने हरियाली के फ़रोग़ के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए हैं। इस सिलसिले में आवाम को मुफ्त पौधे फराहम करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। शहर में मौसर शजरकारी के लिए आवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए डायरेक्टर महकमा बागात ज़िला कोरंगी वक्कास सुमरो ने हरियाली के फ़रोग़ के लिए आवाम में मुफ्त पौधे बांटने का ऐलान कर दिया। जी, हमें स्ट्रिक्ट हिदायत है हमारे वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की कि हमें प्लांटेशन पे मैक्सिमम ज़ोर लगाना है। तो हमने इस सिलसिले में फ्री प्लांटेशन कैंप
वो क़याम कर रहे हैं। अगले हफ्ते से हम उसको स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें हम आवाम से ये दरख्वास्त करेंगे कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो वो देंगे, प्लांट्स देंगे। डिप्टी डायरेक्टर मोइन खान का कहना था कि आवाम में मुफ्त तकसीम किए जाने वाले पौधे DMC कोरंगी की अपनी नर्सरियों में तैयार किए जा रहे हैं। नीम है, गुलमोहर है, अमलतास है, इमली है, ये हमने तैयार किए हुए हैं। और ये हम कैंप्स तो बहुत लगते हैं, लेकिन फॉरेस्ट से छोटे छोटे पौधे दे के लोगों को फारिग कर दिए रहे। हम तैयार प्लांट्स जो कि कम से कम अच्छी स्ट्रॉन्ग होगा और जिसको लगाने से जो है 3 से 4 फीट होगा और फौरी उस पर मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी और जो भी आवाम उसको लगाएगी तो कामयाब होगा। बल्दिया कोरंगी की आवाम इस ऑफर से फ़ायदा उठाते हुए अपने गली मोहल्लों को हरा भरा और सेहतमंद माहौल फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन आगर रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। चैलेंज क्रिकेट में एजुकेटर्स एकेडमी ने नाइट्स 11 को 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। समीर खान ऑलराउंड कारकर्दगी पेश करके मैन ऑफ द मैच करार पाए। TMC ग्राउंड गुलबर्ग में खेले गए मैच में नाइट्स 11 डिफेंस की टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में सिर्फ 80 रन बनाकर ढेर हो गई। फैसल खान 20 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान समीर खान और अब्दुल समद ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में एजुकेटर्स एकेडमी ने हदफ बासानी 9वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान समीर खान ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 40 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। समीर खान का कहना था कि नौजवानों में टैलेंट है, इनकी सरपरस्ती करनी चाहिए। टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी और ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट्स की हेल्प जो होता है ना कि फाइनेंस देना लड़कों को। देखें ये लड़के डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं, कुछ जो है ना ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ अफोर्डेबिलिटी वो नहीं कर पाते। तो डिपार्टमेंट्स पहले हुआ करते थे कराची में, बहुत अच्छे जो है ना हेल्प करते थे लड़कों को, टैलेंट्स आता था। तो अब आप देख रहे होंगे कराची से बहुत कम टैलेंट निकल रहा है। एजुकेटर्स एकेडमी और नाइट्स 11 के दरमियान दूसरा मुकाबला 28 मई को होगा। खुसूसी अफराद की बहाली के मरकज़ में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध के मामूनी खुसूसी सादिक अली मेमन का कहना है कि खुसूसी अफराद को माशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। गुलिस्तानी जौहर में महकमा खुसूसी अफराद की बहाली के मरकज़ में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तालिब इल्मों ने मिली नग़मे पेश किए, जिसे हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। तकरीब के दौरान टैबलोस पर स्पेशल अफराद की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद मेहमान दाद दिए बगैर ना रह सके। खुसूसी अफराद को नुमाया कारकर्दगी पर माहाना वजीफे, असनाद और मेडल्स दिए गए। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सादिक अली मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद को तालीम और तरबियत के साथ हुनर फराहम करके मुआशरे का कारामद शहरी बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में खुसूसी अफराद की बहाली के मरकज़ में इजाफा भी किया जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी मेरे ख्याल में प्रोग्राम था। आप खुद देखें कि यहाँ पे हमारे पास 4 बेसिकली यहाँ पे मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको केटर किया जाता है। VI विजन इम्पेयर्ड हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट हैं, फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं। तो इन सबको यहाँ पे देखा जाता है। ये एक कराची का सबसे बड़ा सेंटर भी है और हम इसको और भी ज़्यादा इसमें बेहतरी लाने की कोशिश में हैं। खुसूसी अफराद बहाली मरकज़ कराची की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रत्ना दीवान का कहना था कि बच्चों के साथ वालिदैन ने भी सालाना तकरीब के इनेकाद को सराहा। और बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उनको इस चीज़ की हौसला अफजाई कराई जाती है कि वो माशरे का बाहिम्मत और ख़ुद मुख्तार फ़र्द बन सकें। इसलिए तमाम वालिदैन, असातिज़ा, रिहेबिलिटेशन टीम और सपोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ इन बच्चों ने इस फंक्शन को आज बहुत कामयाब बनाया, बहुत दिलचस्पी दिखाई। तकरीब में सेक्रेटरी महकमा खुसूसी अफराद मोहम्मद खान रांझा और साबिक सेनेटर अब्दुल हसीब खान समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन साजिद अली के साथ जावेद इकबाल, कराची।